new video like types of business analysts. Yes, today we are going to see what kind of different business analysts are there in the market. And if you are a working professional, then you will come to know in which category you are falling according to your roles and responsibility. And if you are a student and you want to start your journey in working as a business analyst, or you're planning for any course from any institution, then you will come to know what exactly they are going to teach you, whether they are making you the A category of business analyst, the B, C, and D, whatever categories we are going to see. Right? Okay. So moving ahead, there are four different categories of a business analyst according to their roles. If we talk about domain, we can talk about business analysts with banking domain, business analysts with healthcare domain. But when it comes to their roles and responsibility, we can categorize them in four different uh, like categories. The first one is vanilla business analyst. The second one is pre-sales business analyst. The third one is functional business analyst. And the fourth one is technical business analyst. What these all roles are and how I have categorized these one, we are going to move ahead and we are going to say it. Okay, let's move ahead on the second slide. So here, what exactly the business vanilla business analyst is? So basically, business analyst who is in the starting phase of their career, or you can say a business analyst who is like performing only and taking participate only in creating documents, understanding requirement, and these all. So they are known as the vanilla business analyst. Means they are not performing in giving the solution and all. Just they are taking part in the meeting. They are creating MOMs. They are writing notes. They are writing things and documents and all. Then they are called a vanilla business analyst. मतलब अगर आप business analyst हो and you are just taking part in creating documents, there is no role that you are performing in providing solution, writing features, analyzing the data, then definitely you are performing the role of a vanilla business analyst in that particular organization, in that particular project. तो vanilla business analyst बनने के लिए हमें क्या क्या skills आने चाहिए? So the first thing, business analyst को requirements समझना आना चाहिए. Understanding requirement is really important and a crucial role for a business analyst. अगर आप रिक्वायरमेंट ही नहीं समझते आप कुछ नहीं कर सकते सो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स as there you can see the line journal BS who focus on understanding the needs of the requirement and creating document मतलब ऐसा बंदा जो requirement समझ रहा है और documentation कर रहा है suppose you are participating in meetings and you are taking MOMs, you are just creating the MOMs and the notes and वो आप submit करते हो, then people used to sign on it and all. तो आप सिर्फ एक vanilla business analyst का रोल उस organization में या फिर उस कंपनी में परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हो एज अ बिगनर और वहां पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जा रहा है देन मेक श्योर यू आर गोइंग टू बी अ वैनिला बिजनेस एनालिस्ट आप बहुत बार देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखा रहता है वी आर लुकिंग फॉर वैनिला बिजनेस एनालिस्ट सो दिस इज द थिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैनिला बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है ऐसा बंदा जो स्पेशलाइज होता है डॉक्यूमेंट्स में ठीक है उसको बहुत अच्छा राइटिंग स्किल होता है रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बीआरडीज बनाता है रिपोर्ट्स बनाता है एक्सेल वर्ड्स इन सब का नॉलेज अच्छा होना चाहिए अगेन अगर कुछ फ्लो उन्हें दिखाना है तो जैसे ड्रॉ डॉट आई ओ एम एस विजुअल वगैरह टूल्स उन्हें आना चाहिए एंड मूविंग अहेड एंड द लास्ट पॉइंट वो इस तरह के डॉक्यूमेंट लिख सकता हो जो काफी इजीली सारे स्टेक होल्डर्स को समझ में आ जाए मतलब एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो वेनिला बिजनेस एनालिस्ट वो बंदा है जो मेनली फोकस करता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में उसका कोई रोल नहीं होता है फीचर्स लिखने में फंक्शनल पार्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में तो दैट candidate or that business analyst is known as vanilla business analyst and this is the first category of a बिजनेस एनालिस्ट ऐसे भी अगर आप एज अ फ्रेशर या फिर स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन पहली चीज है जो आपको सिखाता है
वो लगभग आपसे मीटिंग्स अटेंड करवाता है, एमओएम्स बनवाता है, बीआरडीज बनवाता है। तो इन इनिशियल फेज, all BA starts with the role of vanilla business analyst. Moving ahead. Now the second part is pre-sales business analyst. होप आप लोगों ने बहुत बार जॉब डिस्क्रिप्शन देखा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा वी आर लुकिंग प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट। प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट होता कौन है? तो यहाँ पे समझो, दो तरह के बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एक प्रोजेक्ट में। एक होता है प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट, मींस वैसा बंदा जो आपके कंपनी में टेंडर या फिर आपके क्लाइंट से एग्रीमेंट होने से पहले ही उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, उसका बहुत बड़ा रोल है उस प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के लिए। मींस जब भी टेंडर फील होता है और आपकी कंपनी को वो टेंडर मिलता है, तो आपकी कंपनी को टेंडर मिलने के बाद नॉर्मल बिजनेस एनालिस्ट उस पर वर्क चालू करते हैं। प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट वो होता है जो टेंडर को ग्रैब करने में मदद करता है। मतलब कि अभी वो टेंडर हमें मिला नहीं है, बट by the help of giving presentation, by the help of interacting with client, providing solution to them, वो बंदा क्या करता है, प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट उस टेंडर को ग्रैब करके आपके कंपनी में लाता है। तो उनका पहला और सबसे हार्ड स्किल क्या होता है, दे मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, बिकॉज कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट in grabbing the tenders and all, and especially for business analysts it matters a lot to have good communication. Okay, moving ahead, उनको बहुत बार मॉकअप्स लेने होते हैं। दे मस्ट बी फैमिलियर हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स टू द क्लाइंट। प्रेजेंटेशन में उनको महारत होना चाहिए। क्लाइंट को जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है, उसकी मदद से क्लाइंट को सॉल्यूशन दिखाना है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट कर चुके हैं एंड वी कैन प्रोवाइड यू एक्स वाई जेड सॉल्यूशन ऑन द सेम बेसिस। तो इस तरह के रोल्स होते हैं प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट के। अलॉन्ग विद दैट, उनको पावर पॉइंट उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। एज आई सेड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग presentation and all, then definitely PowerPoint has a lot in giving and presenting or creating presentation to impress the client and to grab the tender and all. Okay, moving ahead, they know the market, they have to do a lots of research about the client, and they know the market and the competitor, so that they can present themselves, yes we are the best and we can provide you the best solution. Because जब टेंडर निकलता है कंपनी का, देन दे आर लॉट्स ऑफ वेंडर्स, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, आईटी कंपनीज होती है जो उस टेंडर को फिल करती है और उसे ग्रैब करना चाहती है। तो एक जो प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट होता है उसको इतना स्मार्ट इनफ होना चाहिए कि वो और कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर वो पार्टिकुलर टेंडर को ग्रैब कर सके। So this is the role of a pre-sales business analyst. In simple word, एक बार मैं अगर इसको रिवाइज करवा दूं, तो ऐसा बंदा जो टेंडर में कॉम्पीट कर रहा है, मतलब टेंडर अभी आपके कंपनी को मिला नहीं है और वो उसे लेने के लिए मीटिंग्स करता है, क्लाइंट को पीपीटी प्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन बताता है और उससे इम्प्रेस होके आपकी कंपनी को टेंडर मिलता है। मीन्स यू आर हेल्पिंग योर कंपनी टू गेटिंग टेंडर्स बाय द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू योर क्लाइंट। दिस इज द मेजर रोल ऑफ अ प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट। होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रोल प्ले कर रहे हो कि टेंडर आने से पहले आप सॉल्यूशन दे रहे हो